Hello everyone. Today we will discuss precedence function. Till now we know that how we can create a precedence relation, and the precedence relation is a n by n cross n two-dimensional relation between all amongst all the terminal symbol. So it will take a size of n cross n. So we have to encode in such a way that we can use the space complexity as well as comparing complexity. Since in precedence relation we can copy the value of the cell value, which is a characters type, means it is in the form of less than, greater than and equal to. So we are making a character comparison with all with the precedence relation between two terminal. Now precedence function is the encoded form of the same precedence relation in which it contain the numeric value, and the numeric comparison is the relation between two terminals. Okay, so how we can going to decompose the precedence relation of n cross n, which is a character value table, into a numeric representation, that is called precedence function. So the precedence function is a n cross 2 representation of n cross n precedence relation. It is an encoded form of the precedence relation. In this form we use two functions which contain numeric value and for each terminal, and the numeric comparison of these two value of the two terminal is the precedence relation between them. Now let's suppose we have two functions f and g, and for any two terminal small a and small b, if the numeric value of fa is less than g of b, then it says a have lesser precedence over b. Similarly, the value of fa is equal to gb, then a have same precedence of b. And if the value of fa is greater than value of gb, then we can say a has more precedence over b. Now how we can compute these precedence value for a particular grammar or a particular set of terminal symbol whose precedence relation are given. Now suppose this is our precedence value of each terminal symbol, and we can easily compare the two precedence value to provide the relation between them. Now let suppose we want to establish the precedence relation between star and plus, which one is greater. Then left side of we compute the f value of left side of terminal, and right value g of the right side of the terminal is g value. इन दोनों वैल्यू में से कौन सा स्मॉलर है, कौन सा ज़्यादा, दैट डिसाइड द देयर रिलेशन. f of star is 4 and g of plus is 1, so we can say it is higher, so we can say star has higher precedence over plus. That is the our precedence relation. Okay, now how this value has been computed? For this we take a algorithm through which we can compute these value corresponding to the grammar. Now here we can write the algorithm for constructing the precedence function. The step 1, for each terminal we have to create two node f of a and g of a. Means for each terminal we create a two node f of a and g of a. Then step 2, if there is an equal precedence, means अगर हमारा precedence relation में कहीं equal precedence है, then we can club both node f of a and g of b into a single node as f g of ab. अगर किसी में सेम प्रेसिडेंस है, किसी दो टर्मिनल के बीच में सेम प्रेसिडेंस है, देन उनके इस नोड को क्लब करके हम सिंगल नोड बना देंगे, दैट इज एफ जी ऑफ ए बी. नाउ स्टेप 3, दैट इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स. क्रिएट अ डायरेक्टेड ग्राफ बाय इम्पोजिंग अ डायरेक्टेड एज ओवर द नोड्स. अब ये नोड्स पे हम एज कैसे इम्पोज करेंगे? हायर प्रेसिडेंस से लोअर प्रेसिडेंस की तरफ हमारा एज जाएगा. मीन्स अगर हमारा ए हैज़ हायर प्रेसिडेंस देन बी, then left hand side function terminal denotes the f value and right side of the terminal denote the g value. तो f of a से g of b पे h जाएगा. Similarly if a has less than b, then create a h by
जी ऑफ बी टू एफ ऑफ ए। तो इस तरह से हम पूरे ग्राफ पे नोड्स पे एजेस इम्पोज कर देंगे। ठीक, द लास्ट स्टेप, इफ द ग्राफ कंटेन साइकिल देन प्रेसिडेंस फंक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। If the graph contains cycle, then precedence function cannot be determined. Otherwise, if the precedence it does not contain cycle, then the longest path length of a node gives their precedence value. Means जिस नोड से स्टार्ट करें और जिसकी लेंथ सबसे मैक्सिमम वाली लेंथ वाला पाथ अगर हम चूज करें तो उसकी जो पाथ लेंथ होगी वो उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू कहलाएगी। दैट इज द प्रेसिडेंस फंक्शन। नाउ आई कैन एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। Now let's take an example. Suppose this is the precedence relation of stored in n cross n, means 4 cross 4 matrix. Now this precedence relation is encoded in the n cross 2 matrix, which utilize the space and easy for the comparison, because numerical comparison is easier than character comparison. So now how we can encode? By applying the step 1, we have to create f of a and g of a corresponding to each terminal symbol. तो यहाँ पे ये सिंबल्स हैं हमारे, तो इनके करेस्पॉन्ड हमने क्या क्या क्रिएट कर लिया, f ऑफ id, f ऑफ स्टार, f ऑफ प्लस, f ऑफ डॉलर, सिमिलरली g ऑफ id, g ऑफ स्टार, g ऑफ प्लस एंड g ऑफ डॉलर। ठीक, क्या इस प्रेसिडेंस रिलेशन में कोई इक्वल प्रेसिडेंस है? नहीं। सो वी इग्नोर द स्टेप 2। नाउ इम्पोज द प्रेसिडेंस रिलेशन फ्रॉम हायर टू लोअर। नाउ हायर टू लोअर, अगर हम इस लाइन पे देखें तो f ऑफ id इज हायर प्रेसिडेंस ओवर स्टार प्लस एंड डॉलर। तो हम ये कहेंगे कि f ऑफ id से 3 एज g ऑफ स्टार, g ऑफ प्लस, g ऑफ डॉलर पे इम्पोज होंगे। सो वी क्रिएट द एजेस फ्रॉम f ऑफ id टू g ऑफ स्टार, g ऑफ प्लस एंड g ऑफ डॉलर। ठीक, नाउ नेक्स्ट स्टार को अगर हम देखें तो स्टार किससे बड़ा है? एक यहाँ लार्जर है, यहाँ लार्जर है और यहाँ लार्जर। सो वी देयर इज एन एज फ्रॉम f ऑफ स्टार टू g ऑफ स्टार, देन g ऑफ प्लस एंड g ऑफ डॉलर। सिमिलरली प्लस किससे लार्जर है? सिर्फ एक से, किससे? प्लस से। सो f ऑफ प्लस टू g ऑफ प्लस एक एज हमारा ऐड होना होगा। नाउ नेक्स्ट, डॉलर इज ऑलवेज लेस देन, सो देयर इज नो आउटगोइंग एज फ्रॉम द डॉलर। नाउ लुक एट द कॉलम वाइज, ये id किससे लार्जर है? इन सारे सिंबल्स से। तो g ऑफ id से g ऑफ स्टार प्लस एंड डॉलर पेजेस जाएगा, तो g ऑफ स्टार, g ऑफ f ऑफ प्लस एंड ये डॉलर। ठीक, सिमिलरली ये कॉलम किससे लार्जर है? सिर्फ 2 से, एक प्लस से और एक डॉलर से। तो g ऑफ स्टार से 2 एज ड्रॉ होंगे, एक f ऑफ प्लस एंड f ऑफ डॉलर। देन नेक्स्ट प्लस किससे लार्जर है? सिर्फ डॉलर से। सो f ऑफ प्लस टू एक एज हमारा जाएगा f ऑफ डॉलर, g ऑफ प्लस टू f ऑफ डॉलर। देन दिस इज कंप्लीटेड। नाउ व्हाट इज द लार्जेस्ट पाथ लेंथ? सिंस दिस इज डंपिंग स्टेट, नो आउटगोइंग एज इज देयर, सो द पाथ लेंथ इज 0 0। नाउ व्हाट इज द पाथ लेंथ ऑफ g प्लस? हम इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका एज, जिससे आउटगोइंग एज कम है, पहले हम उनकी पाथ लेंथ डिटरमाइन करेंगे एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अनदर पाथ लेंथ ऑफ अनदर सिंबल। सो इसकी में एक ही पाथ लेंथ है, सो इट विल बी डिसाइडेड दैट 1 इज द लेंथ ऑफ g प्लस, सो वी ऐड g प्लस इज 1। सिमिलरली ये 1 आ गया, देन f ऑफ प्लस से एक एज g ऑफ प्लस पे आया है और g ऑफ प्लस का लेंथ मैक्सिमम क्या है? 1। सो f ऑफ प्लस इज 1 प्लस 1 इज 2, सो इट्स पाथ लेंथ इज 2। देन नेक्स्ट g ऑफ स्टार से 2 आउटगोइंग एज हैं, एक तो इसकी लेंथ हो गई 1, इसकी लेंथ हो गई 1 एंड देन प्लस 2 इज 3, g ऑफ स्टार इज 3। नाउ नेक्स्ट f ऑफ प्लस से 3 आउटगोइंग एज है, एक यहाँ पे 1 पाथ लेंथ, यहाँ पे 2 पाथ लेंथ और यहाँ पे 1 और प्लस 3 इस सेज कि 4 पाथ लेंथ इसकी मैक्सिमम हो गई, तो लार्जेस्ट पाथ लेंथ इसकी क्या हो गई? 4। देन id से 3 आउटगोइंग एज है, एक है 1,
दूसरा है 1 + 1 2 और तीसरा है 1 + 3, सो f of id is 4. Similarly, g of id is 1 and this largest value 4 is goes to 5. So this is the way to calculate or determine the precedence function corresponding to a precedence relation from the table, and it is encoded into a n cross means 4 cross 2 and it is a 4 cross 4. So if we are saying in a particular grammar there are lot numbers of terminal symbol are there, so it is, you can say, using this precedence relation is costlier than using the encoded form. So this is a one example. Now I can also show the another example in which the precedence relation imposed bit for opening bracket and closing bracket. So there is a equal precedence are involved, and how we can perform the same calculation at there. Now look at, now this is the precedence computation of precedence function from the given precedence relation. We have created the node so far and there is a equal precedence in there, so we just merge these two node into a single node, like this is opening and this is closing. So f of opening is goes merged to g of closing, so we create a single node fg of opening and closing. Now next what we do, we have to draw the edges. Now edges हमें कहाँ से कहाँ ड्रॉ करना है, लार्जर प्रेसिडेंस टू लोअर प्रेसिडेंस. तो इस लाइन में f ऑफ से लार्जर कौन है, f ऑफ से id से g ऑफ स्टार, g ऑफ प्लस, g ऑफ क्लोजिंग, सॉरी g ऑफ क्लोजिंग, तो ये हमारा रहा g ऑफ क्लोजिंग एंड g ऑफ डॉलर को हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड लिख देते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो, ज़्यादा डेंस ना हो ग्राफ, इसलिए. नाउ नेक्स्ट f ऑफ स्टार से कहाँ कहाँ लार्जर है, 1 2 3 4, ठीक. तो f ऑफ स्टार से g ऑफ स्टार, देन g ऑफ प्लस एंड देन g ऑफ क्लोजिंग एंड g ऑफ डॉलर. डॉलर को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि डॉलर इज अ डंपिंग स्टेट, सो वी जस्ट इग्नोर फॉर क्रिएटिंग अ डेंस ग्राफ. नाउ f ऑफ प्लस कहाँ किससे लार्जर है, f ऑफ प्लस इज लार्जर देन दिस प्लस, सो देर इज अ एज फ्रॉम दिस वैल्यू एंड f ऑफ क्लोजिंग, g ऑफ क्लोजिंग एंड डॉलर. सो डॉलर को हमने इग्नोर कर दिया शॉर्ट हैंड में. नाउ f ऑफ ओपनिंग किससे ज़्यादा है, ये किसी से ज़्यादा नहीं है, सो इग्नोर देम. क्लोजिंग, f ऑफ क्लोजिंग किससे लार्जर है, f ऑफ स्टार प्लस, सो वी हैव सपोज स्टार एंड दिस इज फॉर प्लस, क्योंकि वो यहाँ आएगा, हम इसको डेंस नहीं बनाना चाह रहे हैं. एंड g ऑफ क्लोजिंग, ठीक, एंड g ऑफ डॉलर, ठीक. तो ये हमारा एज ड्रॉ हो गया. नाउ कॉलम वाइज हमें देखना है, तो g ऑफ id किससे लार्जर है, इन तीन वैल्यू से. तो g ऑफ id से एक f ऑफ स्टार, एक f ऑफ प्लस एंड एक f ऑफ ओपनिंग, ठीक. तो ये तीन एज ड्रॉ हो गए. सिमिलरली g ऑफ स्टार किससे लार्जर है, सिर्फ एक से, प्लस से एंड ओपनिंग से. तो g ऑफ स्टार एक f ऑफ प्लस से लार्जर है और f ऑफ ओपनिंग से लार्जर है, सो वी क्रिएट हियर. नाउ और किससे लार्जर है, डॉलर से. सो डॉलर के लिए हमने शॉर्ट हैंड यूज़ कर लिया, ठीक, और ये भी डॉलर से है तो इसको भी हमने शॉर्ट हैंड यूज़ कर लिया. देन ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट्स मीन्स सॉरी g ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट, g ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट किससे लार्जर है, स्टार प्लस एंड ओपनिंग से, f ऑफ ओपनिंग. तो g ऑफ ओपनिंग लार्जर है स्टार प्लस एंड डॉलर, ठीक. देन g ऑफ क्लोजिंग, g ऑफ क्लोजिंग किससे लार्जर है, किसी से नहीं. g ऑफ क्लोजिंग किससे लार्जर है, किसी से नहीं, सो देयर इज नो एनी एजेस. नाउ वी कैन कंप्यूट, फाइनलाइज द रिजल्टेंट कंप्यूटेशन. तो क्या होगा हमारा f एंड g वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस टर्मिनल सिंबल विच इज id स्टार प्लस opening parenthesis, closing parenthesis and dollar. Now we have created, now what is this, dumping state 0 and 0. what is this, this length is 1 क्योंकि एक ही outgoing edge है.
इसकी लेंथ कितनी होगी 1 एंड इट इज़ ऑल्सो 1, सो बोथ हैव द लेंथ एफ ऑफ ओपनिंग, सॉरी अभी हाँ इसका कंप्यूटेशन नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, सॉरी 0 0। अब नेक्स्ट किसका हम लेंथ डिटरमाइन करेंगे, एफ ऑफ प्लस का। एफ ऑफ प्लस क्या है, या जी ऑफ प्लस का कर लें। जी ऑफ प्लस से कोई आउटगोइंग एजेस हैं, जी ऑफ प्लस मीन्स अच्छा हाँ सॉरी ये लार्जर था, तो जी ऑफ प्लस से एक एज यहाँ पे गया, सो इट्स लेंथ इज 1। सिमिलरली एफ ऑफ प्लस से 3 आउटगोइंग एज जा रहे हैं, एक तो डॉलर जिसकी लेंथ हो गई 1, दूसरा यहाँ 1, इट इज़ ऑल्सो अ डंपिंग स्टेट, दिस इज 1 एंड प्लस 1, सो इट्स वैल्यू इज 2। ठीक, नाउ नेक्स्ट जी ऑफ स्टार एंड एफ ऑफ स्टार। जी ऑफ स्टार से 3 आउटगोइंग एज है, एक तो डॉलर, सो इट्स लेंथ इज 1, another is this dumping state, it is also 1, another is 1 and plus 2 is 3, so its value is 3। या हम कह सकते हैं, चलो अभी यहीं पे हम कंप्यूट कर ले रहे हैं। देन एफ ऑफ स्टार, एफ ऑफ स्टार का क्या है, एक डंपिंग स्टेट डॉलर, सो इट्स लेंथ इज 1, दूसरा यहाँ पे इसका भी लेंथ 1 है, तीसरा यहाँ पे 1 plus 1 is 2 एंड चौथा यहाँ पे 1 plus 3 is 4, so its value is 4। now next similarly 1 1 and 2 is 3 and 1 plus 4 is 5, this 1 and plus 3 is 4, so its value is 4। now अब हमें क्या करना है, f of closing and g of opening का हमें डिटरमाइन करना है। तो g of opening का क्या होगा, स्टार पे गया तो स्टार पे कितनी लेंथ है 4 और 4 plus 1 is 5, so its length is 5। सिमिलरली इसका प्लस पे कितनी लेंथ है, यहाँ से 1 लेंथ प्लस पे आएगा और प्लस पे 1 plus 1 is 2, स्टार के लिए स्टार पे और 3, तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई 4। सो द पाथ लेंथ इज लार्जेस्ट पाथ लेंथ इज हैज़ बीन डिटरमाइंड फॉर द एवरी नोड। नाउ वी कैन जस्ट रिप्रेजेंट द वैल्यू। डॉलर के लिए 0 0, ओपनिंग ब्रैकेट के लिए एफ ऑफ ओपनिंग के लिए सॉरी एफ ऑफ क्लोजिंग के लिए 4 और जी ऑफ ओपनिंग के लिए 5, और ये डंपिंग स्टेट इसकी लेंथ कितनी होगी 0, विच इन्वॉल्व एफ ऑफ ओपनिंग एंड जी ऑफ क्लोजिंग, सो इट इज बोथ एट 0 0। नाउ नेक्स्ट प्लस के लिए 2, नीचे क्या है 1, इट इज 4, इट इज 3, इट इज 4, इट इज 5। सो वी हैव डिटरमाइंड द precedence function value corresponding to the this precedence relation, or you can say for a given grammar E gives E plus T oblique T, E gives T gives T star F oblique F, F gives opening bracket E closing bracket oblique I। तो इस ग्रामर के लिए हमने क्या किया, पूरे कैलकुलेशन में ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर के लिए सबसे पहले इसका प्रेसिडेंस रिलेशन निकाला, देन आफ्टर डिकम्पोज या एनकोड दिस प्रेसिडेंस रिलेशन ऑफ n क्रॉस n इन अ n क्रॉस 2 मैट्रिक्स विच इज प्रेसिडेंस वैल्यू इन टर्म ऑफ प्रेसिडेंस वैल्यू। सो ऑल दिस अबाउट द प्रेसिडेंस ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग। So we determined the precedence relation as well as operator precedence relation in the contents. Thank you.